ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بات میں بخاری، لیکن جب یہ بات بخاری میں آ گئی تو کہا یہ بات تو خواب کی ہے نا، اس کا مطلب بات بخاری کی اور مسلم کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں نبی کے لیے دل چھوٹا ہو گیا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، دل چھوٹے ہو گئے ہیں جب بخاری میں نبی کی، اور پھر سوچو تو صحیح، ارے تم نبی کی آمد کا جشن سال میں ایک مرتبہ مناتے ہو، اللہ رب العزت ابو لہب جیسے کو ہر ہفتے اس کا فائدہ عطا فرما رہا ہے، ہر ہفتے دے رہا ہے فائدہ، اللہ اکبر۔ اب بات لیکن اگر یہ ہے کہ چلو وہ تو بات خواب کی ہے، لیکن بات خواب کی ہے، اگر کسی خواب کو اصول یہ صحابی بیان کر دے، کسی خواب کو صحابی بیان کر دے، پھر وہ خواب نہیں رہ جاتا، پھر وہ حدیث ہو جاتی ہے۔ ارے نبی خواب بیان کر دے، نبی خواب بیان کر دے تو پھر نبی کے اس خواب پر پوری سورہ یوسف نازل ہوتی ہے، اور پھر وہ خواب کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب بتائیں کوئی کہے وہ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، ارے خواب دیکھنا اپنی جگہ تھا، بیان کیا اب نبی کی زبان سے نکل گیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حکایتاً بیان فرمایا اور احسن القصص اس کو کہا۔ تو عباس نے خواب دیکھا لیکن اس کو بیان کیا زبان سے، اور جب بیان کیا تو اب گویا وہ حدیث ہو گئی۔ اور یہ بات آپ کو سمجھی 14ویں صدی میں، یہ بات امام بخاری کو نہیں سمجھی کہ میں حضرت عباس کا خواب کیسے بیان کر دوں، لیکن امام بخاری تو حضرت عباس کا خواب اتنے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ 14ویں صدی میں منکرین میلاد پیدا ہوئے ہیں، ورنہ جو دور امام بخاری کا تھا اس دور کے اندر میلاد کا کوئی مخالف نہیں تھا، بلکہ بخاری بھی میلاد کے قائل تھے، اور میلاد شریف میں جو فائدہ ملتا تھا اس کے قائل تھے، اسی لیے تو میلاد پر وہ حدیث لائے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ بات سمجھنے کی ہے، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا جسم اقدس اتنا لطیف تھا کہ حضور کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ حضور کا حسن کیا تھا، صحابہ بیان کرتے ہیں، کسی نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح گول تھا۔ کسی نے کہا چاند کی طرح تھا یا تلوار کی طرح، چاند چمکتا ہے ویسا تھا یا تلوار چمکتی ایسا، کنی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا، کیونکہ تلوار کے اندر لمبوترا پن ہوتا ہے اور چاند کے اندر گولائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اقدس چاند کی طرح گول تھا، اور فرماتے ہیں کہ حضور کی بھویں بڑی بڑی تھی، گھنی تھی، اور بالکل کمان کی طرح تھی، اور ہلکی سی آپس میں آ کر کے وہ بیچ میں مل جاتی تھی۔ اس کو استاد زمان مولانا حسن رضا کہتے ہیں، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ حضور کے ابرو کو دیکھ کر ایسے لگتے تھے جیسے دو قبلے آپس میں گلے مل رہے ہوں، اور حضور کی جو پلکیں تھی وہ بڑی بڑی تھی، دراز تھی، اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں، جو آنکھ کی پتلیاں ہوتی ہے وہ انتہائی گھٹ کالی، اور جو آنکھ کی پتلیوں کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے جس کو سفید حصہ کہتے ہیں وہ سفید، اور اس میں سرخ ڈورے، اور قدرتی طور پر آنکھیں سرمگی ہوتی تھی، سرما لگائے بغیر ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ابھی کسی نے سرما لگا دیا ہو، اتنی وہ خوبصورت آنکھیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا حضور علیہ السلام کے حسن پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت طفیل ابن عمرو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکے میں تجارت کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں مکے میں تجارت کے لیے آیا، اور آنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ مکے میں جیسے ہی آیا میرے پاس ابو جہل آیا۔ دراصل یہ تھا کہ جب ابتدائی اسلام میں، ابتدائی طور پر اسلام کے جو شروعاتی دن تھے، حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، تو اتنی مخالفتوں کا ماحول تھا، پورا مکہ گویا کہ حضور کے خلاف تھا، اور پھر وہ لوگوں نے اتنا غلط پروپیگنڈا دور دور تک کر دیا تھا کہ کوئی حضور تک جا نہ سکے۔ جیسے ہی کوئی مکے میں نیا آدمی آتا
पहले से ये लोग उसके पास जाकर के उसके इतने कान भर देते कि कोई हुजूर अलैहिस्सलाम से मिल भी ना सके, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी कि हक बात अगर पहुंचेगी तो लोग जरूर कबूल करेंगे। लोगों को हक से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हक के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है कि हक बात कभी किसी के कान में ना पहुंचे। देखें आप, अक्सर आप देखते हैं अहले हक के खिलाफ हर दौर में प्रोपेगेंडा रहा है। मिलादुन नबी के हवाले से आज आप देखें बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार ये बिदात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये लोग क्यों इतना खर्च करते हैं, ये लोग क्यों इतनी फजूल खर्ची करते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, आपकी बात हम कबूल कर रहे हैं, आप कहते हैं फजूल खर्ची। मैं कहता हूं ये बताएं एक मुसलमान मिलाद पे कितना खर्च करता होगा? 2000, 5000, 10,000, ठीक है ना, यही खर्च करते हैं। लेकिन आप साल में एक मरतबा मिलाद पे खर्च करने को फजूल खर्ची कहते हैं। लेकिन हर साल ईद उल फित्र पर जो लोग 4-4 हजार की जींस पैंट खरीदते हैं, कभी उस पर भी किसी ने तकरीर की है कि ये भी फजूल खर्ची है? हर साल जो है ईद उल फित्र पर जो है वो बाजार लगते हैं, लोग एक एक जूते की बजाय 4-4, 2-2 जूतों की जोड़ियां खरीदते हैं, उसके बाद 2-2, 3-3 टोपियां खरीदते हैं। मेरा ये फतवा नहीं है कि नाजायज और हराम है, लेकिन जो हजरात कहते हैं मैं उनको समझाना चाहता हूं। मेरे अजीज आप समझ नहीं रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपको किसी ने अगवा कर लिया है, आपकी फिक्र को किसी ने अगवा कर लिया है। ये यहूद और नसारा की फिक्र है कि किसी तरह तुमको रसूल पाक से दूर कर दें, और आप उन्हीं की फिक्र में डूब करके लाशऊरी तौर पर ये बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप गलती पर हैं, इंशाअल्लाह आप अपनी बात से जरूर रुजू करेंगे, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि हम लोगों को नमाज बताकर मुसलमान नहीं कर सकते, हम किसी को रोजा दिखाकर मुसलमान नहीं कर सकते, हज दिखाकर मुसलमान नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हम नमाज वहां पढ़ते हैं जहां काफिरों की एंट्री नहीं है, हम हज वहां करते हैं जहां लिखा फकत लिल मुस्लिमीन, हुदूद हरम में तो मुसलमानों के सिवा कोई दाखिल नहीं होता। फिर आप मुझे बताएं, अगर आप कहें कि हमारे मजहब में नमाज पढ़ना है तो कोई बढ़ करके कहेगा हमारे मजहब में भी एक तरह की ये इबादत मौजूद है। आप कहेंगे हमारे यहाँ रोजा है, कोई कहेगा रोजे का किसी न किसी एतबार से तसव्वुर हमारे यहाँ भी है। तो फिर आप आखिर क्या चीज पेश करके दोनों के दरमियान फर्क कायम करेंगे? और आप बताएंगे मिसाल के तौर पर अगर कोई यहूदी आपके पास आ जाए या कोई ईसाई आपके पास आ जाए, वो आपको कहेगा माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आप यहूदी हो जाइए, आप कहेंगे आप मुसलमान हो जाइए। अगर कोई ईसाई आके कहता है आप ईसाई हो जाइए, आप कहेंगे आप मुसलमान हो जाइए। तो अब ऐसी सूरत में ये जो प्रोपेगेंडा गलत फहमी की बुनियाद पे फैलाया जा रहा है, अगर आपने यही बातें की, आप उनसे पूछेंगे ये बताइए कि मैं ईसाई क्यों हो जाऊं, तो वो आपको कहेगा हमारे पैगंबर ईसा वो हैं कि जब वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, पैदा होने के बाद उनकी पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र तो कुरान में भी किया है, विलादत ईसा का जिक्र कि मरियम जब गई तो जाने के बाद उनको बच्चे की विलादत हुई, बच्चा जब पैदा हुआ तो उनकी जो है वो खुशी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम से कहा मरियम तू ये खुश्क टहनी को जो है वो हरकत दे। उसने हरकत दिया तो खुश्क टहनी से खजूर गिरने लगी, ताजा खजूरें, नीचे पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत ईसा अलैहि सलाम को जब गोद में लेकर के आई, और जब गोद में लेकर के आई तो उस वक्त लोगों ने कहा ए मरियम तूने ये क्या किया, तेरा घराना तो बड़ा पाकीज़ा घराना था और ये बगैर बाप का बच्चा कहां से आया? तो मरियम ने कहा मैंने तो आज कुछ कहना ही नहीं है, मैंने तो चुप कर रोजा रखा है। तो झूले में हजरत ईसा थे, वो कहने लगे ए लोगों उससे ना पूछो, मुझसे पूछो। क्या पूछो? उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा मैं अब्दुल्ला बन करके आया हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की है। ये कौन कह रहा है? चंद घंटे के ईसा अलैहि सलाम कह रहे। ईसाई कहेगा बोल ए मुसलमान अब बता तू ईसा को मानता है कि नहीं मानता? हम कह रहे ईसा अलैहि सलाम को तो हम मानते हैं, लेकिन मुसलमान होकर मानते, ईसाई होकर नहीं मानते। तो उसने कहा ठीक है ना, पढ़ ले हजरत ईसा अलैहि सलाम का कलमा, ईसाई हो जा, छोड़ दे माअज़ल्लाह इस्लाम को, अस्तगफिरुल्लाह। अगर कोई ये बात कहेगा, अब वो कहेगा कि तुम जो मुझे मुसलमान होने की बात कर रहे हो तो बताओ कि मैं मुसलमान क्यों हूँ। अगर आप ये कहेंगे हमारे नबी तो वो हैं जिनकी विलादत के वाकयात ही कुछ नहीं, सारी हदीसें ज़ईफ है, काफिरों ने बयान की है, हम नहीं मानते हैं, बताओ किस मुंह से उसको कलमा पढ़ाओगे, किस मुंह से? वो तो बता रहा है कि ईसा अलैहि सलाम की विलादत के वक्त ये बातें हुई है। अब अगर आपने माअज़ल्लाह ये बात कही जो दकियानुसियत है, जो जिहालत है,
जो शैतान की अगवाकारियां हैं, जो गोरख धंधे लोगों ने उठा रखे हैं कि नबी के विलादत के वक्त के वाकयात सब काफिरों ने बयान किए हैं, इसलिए हम नहीं मानते। लेकिन मुझे बताओ, ईसाई जब तुम्हारी औलाद को सर चढ़ करके बोलेगा कि ईसा की विलादत के वाकयात साबित है और ये मौजज़ात ईसा है, तो तुम ईसा को बड़ा मानते हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह को? उस वक्त तुम्हारी नस्लों को जवाब देने के लिए क्या होगा? लेकिन अगर तुमने गौसो ख्वाजा का दामन पकड़ा होगा और आपका ताल्लुक अहले सुन्नत से होगा, तो आप उस ईसाई का हाथ पकड़ कर कहेंगे, ओ ईसाई सुन, अगर तू ये कहता है कि चंद घंटों के ईसा ने कहा कि मैं अब्दुल्ला बनकर के आया हूं, तो सुन सुन, मेरे नबी की विलादत का जखीरा रिवायात का मेरे पास भी मौजूद है। मेरे नबी जब पैदा हुए तो उनकी मुकद्दस मां ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले सजदा किया और सजदा करके कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। झूले से ये कहना कि मैं अल्लाह का बंदा बन करके आया हूं, ये भी मौजज़ा है, लेकिन सजदे में जाके सबूत देना कि मैं अल्लाह का बंदा भी और उम्मत का नबी भी बन करके आया हूं, ये उससे बड़ा मौजज़ा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, इतने जज्बाती मत बनो, आगे का सोचो, हकीकतों के मुसाफिर बनो। अगर वो कहेगा हजरत ईसा की अम्मी जो है वो जब गई ना तो उनके लिए खजूरें आई है और फिर उनके नीचे पानी जारी हुआ है, अगर मरियम के दरख्त की टहनी हिलाने से खजूरें टपकती है, यकीनन ये भी करामत मरियम है। ओ ईसाई सुन, ये मेरे नबी की आमद की बात है। वहां तो टहनी हिलाना पड़ती है, उसके बाद खुद से उठा के खाना पड़ता है, पानी लेना पड़ता है, खुद से पीना पड़ता है। मरियम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन जो जैसा है उसकी शान वैसी है। लेकिन जब जाने मरियम की बात आई ना, जाने मसीहा की बात आई ना, तो फिर क्या हुआ? वहां टहनी हिलानी नहीं पड़ी। मेरे नबी की मुकद्दस अम्मी सैयदा आमिना कहती है, जब मेरे महबूब मोहम्मद की आमद का वक्त आया तो सरे शाम ही से मेरी छत खुल गई, आसमान से लेकर मेरे सर तक नूर की किंदीलें थी। और फिर उस दिन क्या हुआ? मरियम तो तन्हा थी और तमन्ना करती थी काश आज से पहले मैं मर कर खत्म हो गई होती, लेकिन वहां मरियम तन्हा है। और हजरत आमिना कहती है, जब मेरे महबूब मोहम्मद का वक्त आया तो उस वक्त मैंने 4 औरतों को खिदमत में पाया, मैंने उनको इससे पहले नहीं देखा था। एक ने आगे बढ़ के कहा, घबराना, मैं हव्वा हूं, आदम की बीवी। वीडियो अगर अच्छा लगा